بچوں کی موج مستیاں ختم، جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ طویل تعطیلات کے بعد طلبہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسکول پہنچے۔ کہیں طلبہ کی حاضری حوصلہ افزا رہی تو کہیں حاضری کم دیکھی گئی۔ تاہم تعلیمی اداروں میں بچوں کی چہل پہل اور تدریسی عمل کے دوبارہ آغاز نے تعلیمی ماحول کو ایک بار پھر زندہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی اداروں میں رونقیں بحال ہو گئی۔ ملتان کے سرکاری سکولوں میں پہلے ہی روز طلبہ کی حاضری 90% رہی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ سکول پہنچنے پر سب سے پہلے دوستوں سے ملاقات کی۔ سالانہ امتحانات میں صرف 2 ماہ باقی ہیں، اس لیے پہلے ہی دن سے پڑھائی اور امتحانات کی تیاری پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ادھر خانپور میں سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ چھٹیوں کے بعد پہلے روز اسکولوں میں حاضری کم رہی۔ پہلے روز بچے خوشگوار موڈ میں اسکول پہنچے اور تعلیمی سرگرمیوں کو خوب انجوائے کیا۔ بنگلہ منٹھار کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں میں پہنچی۔ پہلے دن بچوں کی اسکولوں میں حاضری 80 سے 85% رہی۔ گڑھا موڑ میں اسکولوں کے کھلتے ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ والدین اور اساتذہ نے تعلیمی سلسلے کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ اسکول انتظامیہ نے سردی کے پیش نظر بچوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہیں۔ گڑھا موڑ میں اسکولوں کے کھلتے ہی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ والدین اور اساتذہ نے تعلیمی سلسلے کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ اسکول انتظامیہ نے سردی کے پیش نظر بچوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ چوبارہ میں تعطیلات کے بعد پہلے روز اسکولوں میں حاضری کم رہی۔ اساتذہ نے اسکول آنے پر بچوں کو ویلکم کیا۔ جنوبی پنجاب میں سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ فلور ملوں کے لیے گندم کے کوٹے میں اضافے سے مارکیٹ میں آٹے کی دستیابی بہتر ہونے لگی۔ ملتان، بھاولپور اور عیسیٰ خیل میں معیاری آٹے کی دستیابی سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی اقدامات سے آٹے کی قلت اور مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ ملتان کی فلور ملوں کے لیے گندم کا کوٹا 30 بوری سے بڑھا کر 100 بوری کر دیا گیا ہے۔ ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ پہلے فلور ملوں کو ناقص گندم 3250 روپے من دی جا رہی تھی، اب اچھی کوالٹی کی گندم 3000 روپے من دی جا رہی ہے۔ شہریوں نے فلور ملوں کو آٹے کی مقدار بڑھانے کے بارے میں حکومتی اقدام کو سراہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری آٹا بہت کم آتا تھا، صارفین تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ سرکاری آٹے کی وافر مقدار سے عوام کو سستا اور معیاری آٹا ملے گا۔ ادھر بہاولپور میں شہریوں کو سستے آٹے کی بلا تعطل فراہمی کے لیے محکمہ فوڈ متحرک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہباز اقبال سپرا کے مطابق ضلع کو 22 فلور ملوں کے لیے سرکاری گندم کا کوٹا دوسری بار بڑھا دیا گیا ہے۔ روزانہ کا کوٹا 100 کلو کے 4100 تھیلوں سے بڑھا کر 4880 تھیلے کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ میں 10 کلو گرام والے سستے آٹے کے تھیلوں کی دستیابی 33,500 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب عیسیٰ کھیل میں سستے آٹے سے 6 سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام سیل پوائنٹس پر معیاری آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ ایک ماہ میں آٹا 25 روپے اور میدا 30 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی بڑھتی قیمت نے شہریوں کے ساتھ ہوٹل مالکان کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ ہوٹل مالکان کے لیے سرکاری ریٹ پر روٹی اور نان فروخت کرنا نقصان کا سودا بن گیا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن ایک بار پھر سے بے قابو۔ ایک ماہ کے دوران آٹا 25 روپے کلو مہنگا ہو کر 125 روپے کلو ہو گیا، جبکہ میدا 30 روپے بڑھ کر 100 سے 130 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ آٹا اور میدا عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے سے شہریوں، ہوٹل مالکان اور نان بھائیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ روزمرہ کی بنیادی اشیاء مسلسل مہنگی ہو رہی ہیں، جس کے باعث 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت گزارش ہے کہ ہماری دہاڑی میں اضافہ کیا جائے، یا پھر آٹا یا میدے میں نا ریٹ کم کیا جائے۔ روٹی ہم جو دہاڑی لے جاتے ہیں، ہمارا تو ایک ٹائم کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا گھر میں۔ ان سے اپیل ہے کہ جہاں ہماری دہاڑی بڑھائے یا آٹے میدے کا ریٹ کم کریں۔ عوام کا ویسے بھی جینا مشکل میں ہوا پڑا ہے۔ دوسری طرف ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ روٹی کا سرکاری ریٹ 14 روپے اور سادہ نان کا ریٹ 20 روپے مقرر ہے، مگر آٹا اور میدا مہنگا ہونے کے باعث ان نرخوں پر روٹی اور نان فروخت کرنا ممکن نہیں۔ ہوٹل مالکان اور نان بھائیوں کا شکوہ ہے کہ بجلی، گیس اور دیگر اخراجات کے ساتھ آٹے کی قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، مگر سرکاری نرخوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔
मौजूदा हालात में सरकारी रेट पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। चूँकि हमारा जो काम है ना वो रोटी नान का है, जो जिसमें ज़्यादातर आटा और मैदे का इस्तेमाल ही ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर आटे मैदे के इस्तेमाल में रहते हैं, तो हम सरकारी रेट के ऊपर चलाते हैं ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। होटल मालकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो आटा और मैदा की कीमतों में फौरी कमी की जाए या फिर रोटी और नान के सरकारी रेट में इजाफा किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। भावलपुर मार्केट में कपास के रेट में तेजी। 15 रोज में फी मन कपास का रेट 1000 रुपये बढ़ गया। कपास की कीमत 7200 रुपये से महंगी होकर 8200 रुपये फी मन हो गई है। मजीद जानते हैं महमूद सहीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मईशत में कपास को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कपास की फसल से मुख्तलिफ तबकात की खुशहाली जुड़ी हुई है। आजकल बहावलपुर की मार्केट में कपास के रेट में तेजी देखी जा रही है। 15 दिन में फी मन कपास की कीमत 1000 रुपये बढ़ गई। 15 रोज पहले कपास की कीमत 7200 रुपये फी मन थी, जबकि कपास अब 8200 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है। किसानों के पास कपास थी तो मंदी थी, बिल्कुल रुल गए बेचारे। खाद ही महंगी, कपास जो है बिल्कुल सस्ती थी, अब थोड़ा बहुत रेट उठा है इसका। बस कमाएंगे कौन? कमाएंगे मिल वाले, बड़े बड़े डीलर, फैक्ट्रियों वाले, वो कमाएंगे इससे। कपास के रेट में इजाफा पर किसान कहते हैं कि कपास की कीमत में अब इजाफा से किसानों को नहीं बल्कि दुकानदारों, आड़तियों और कॉटन इंडस्ट्री मालकान को फायदा पहुंचेगा। हुकूमत को कपास की कीमत पहले बढ़ाना चाहिए थी। संभाल सकता था ना, उसने संभाली हुई थी, जनवरी देख रहा था, तो मतलब अब जिम्मेदारों के पास से आ रही है, जो कपास जा रही है ना, तो वो जिम्मेदार के पास से आ रही है। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदार का फायदा हो रहा है, ये किसी मतलब स्टॉकिस्ट का फायदा नहीं हो रहा, ये जिम्मेदार का फायदा हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इन दिनों कपास को कॉटन फैक्ट्रियां और बड़ी मंडियां खरीद रही हैं। तलब में इजाफा होने पर कपास की कीमतें बढ़ी हैं। कैमरामैन शाह सकलान के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में एलपीजी माफिया बेलगाम। सिलेंडर गैस की सरकारी कीमत से 100 रुपये फी किलो जायद वसूली जारी। एलपीजी की सरकारी कीमत 220 रुपये फी किलो मुकर्रर, मगर आम मार्केट में 320 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। खुद साख्ता महंगाई करने वालों से शहरी परेशान हैं। आशान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में खुद साख्ता महंगाई एक मरतबा फिर जोर पकड़ गई। जिलाई इंतजामिया मनमानी कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। आम मार्केट में एलपीजी तयशुदा सरकारी कीमत से फी किलो 100 रुपए महंगी फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी की सरकारी कीमत 220 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि आम मार्केट में एलपीजी 320 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह घरेलू सिलेंडर भी आम मार्केट में 2600 की बजाय 3500 रुपए का फरोख्त हो रहा है। खुद साख्ता महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं, जिले इंतजामी की मौसर कार्रवाई न करने से दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। महंगाई वैसे भी बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट प्राइसेस 220 से 230 रुपए गैस है पर केजी के हिसाब से, तो मार्केट में 320 से 330 रुपए फरोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से थोड़ा गवर्नमेंट को मतलब अपना कुछ कदम उठाने चाहिए। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की कार्रवाइयाँ कागजों तक महदूद हैं। एलपीजी जैसी बुनियादी ज़रूरत की कीमत में बेजा इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगियाँ अजीरन कर दी हैं। महंगाई हो गई है जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। सरकारी कीमत 220 रुपये और 320 रुपये 330 रुपये फरोख्त की जा रही है, जिस वजह से अवाम बहुत परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। अभी आपको बताएं कि ग्रीन बस सर्विस से मुतालिक मुतजाद अवामी सूरत हाल। कहीं शहरी जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात से महरूमी का शिकवा कर रहे हैं तो कहीं सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। नौशहरा जदीद और सरगोदा से आने वाली तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौशहरा जदीद की आवाम सस्ती और आरामदेह सफर सहूलत से महरूम। शहरियों का शिकवा है कि इलेक्ट्रो बस सर्विस बहावलपुर तक महदूद है। इलेक्ट्रो बसों का रूट पुल कंबड़ा और पुल सदीकाबाद तक चलाया जाए। उधर सरगोदा में ग्रीन बस सर्विस के लिए नए बस स्टॉप कायम कर दिए गए। शहरियों की सहूलत के लिए बस स्टॉप पर बेंच और शेड्स भी नस्ब कर दिए गए। शहरियों ने ग्रीन बस सर्विस और नए बस स्टॉप पर इत्मीनान का इजहार किया है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। सैलाब के कई महीनों बाद भी हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरा खानदान बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जलालपुर, पीरवाला और मियाँ चनू के मुतासरीन ने हुकाम की अदम तोजीही पर इजहार तशवीश करते फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए।
जलालपुर पीरवाला में हजारों सैलाब मुतासरीन की आंखें पथरा गईं, पर हुकूमती इमदाद ना मिली। खान बेला में तवील इंतजार के बावजूद हुकूमती इमदाद ना मिलने पर जफर नामी सैलाब मुतासरा और उसके अहल खाना शदीद मायूस हो गए। मुतासरीन ने टूटे घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए कर्ज ले लिया। सैलाब मुतासरीन ने इमदाद की मनसूबाना तकसीम के लिए दोबारा शफाफ सर्वे का मुतालबा कर दिया। उधर मियाँ चनू के नवाही गांव मूसा अली खख में सैलाब मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के महीनों बाद भी ना माली इमदाद मिली और ना ही नुकसानात का अजाला किया गया। मुतासरा खानदान आज भी खुले आसमान तले बारिश और सर्दी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने फौरी मदद ना की तो हालात मजीद संगीन हो जाएंगे। आपको बताएं कि मुल्तान में सड़कों के हालात बेहतर न हो सके। शहर में दहली गेट रोड अरसा दराज से मुरम्मत का मुंतज़िर है, जबकि दूसरी जानिब हैदरिया रोड भी टूट फूट का शिकार है। शहरियों को खस्ता हाल सड़कों से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फराज रमजान की ये रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया की गफलत या फिर मुबैना न अहली। एक तरफ दिल्ली गेट रोड अरसा दराज से मुरम्मत का मुंतजिर, दूसरी जानिब हैदरिया रोड टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। दिल्ली गेट रोड पर आए रोज सीवरेज और रोड मसाइल से ताजिर बरादरी भी शदीद परेशान है। ताजिर कहते हैं कई साल से ये रोड इनके लिए इम्तिहान बना हुआ है। रोड पर गड्ढों की वजह से टायर पंचर हो जाते हैं और हादसा भी होते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इधर ना, पानी का बहुत ज़्यादा होता है, डेली खड़ा होता है पानी। सुबह जाएं तो पानी है, शाम को जाएं जब भी पानी है, बड़े तंगी होती है इधर। और एक अरसे से हाँ जी खड्डे, हाँ जी एक अरसे से यहाँ पर ये निज़ाम ये चल रहा है कि ना मोटरसाइकिल यहाँ सही चल सकती है और ये रोड बिल्कुल भी नहीं कम्प्लीट बन रहा है। बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ख़त्म है यहाँ, दुकानदार इतने हाँ जी खड्डे भी हैं, रोड भी ख़राब है यहाँ पे और कारोबार ऐसे खत्म हो गए, लोग दुकानदार बहुत फुल परेशान है इस मामला में। दूसरी जानिब हैदरिया रोड टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 12 मुतालबा जिला इंतजामिया को दरखास्त कर चुके हैं, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया हैदरिया रोड के दरीना मसले को फौरी हल करे। 3-4 स्कूल लगते हैं, बच्चों का आना जाना, रोड ब्लॉक हो जाता है सारा, ये सिर्फ टूट फूट की वजह से। गंद कचरा बहुत ज्यादा इधर पड़ा हुआ होता है। मुश्किलात तो होती हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, ये यहाँ पे रोड खराब है इस वजह से। शहरियों और ताजिरों ने मुतालबा किया है कि हैदरिया रोड और दिल्ली गेट रोड की फौरी मुरम्मत करवाई जाए ताकि कारोबार बहाल हो सके और लोग भी मजीद हादसा से महफूज रह सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। शहर औलिया के मोहल्लात उतलपुरा, बीबी पाक, माइट चौक सीवरेज मसाइल से 2-4 चौक शाह अब्बास के करीब ये गुंजान आबाद इलाका अरसा दराज से वासा की तवज्जो का मुंतसिर है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए कोशा। कहते हैं कि सीवरेज मसाइल हल करने के लिए वासा इंतजामिया कोई मुआवनत फ्राहम नहीं कर रही। सलमान जमीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली, मोहल्ला तोतलपुरा, बीबी पाक, माई चौक के अतराफ में सीवरेज मसाइल संगीन हो गए। सीवरेज लाइन की वजह से तोड़ी गई सड़क भी गुजरने के काबिल नहीं। वासा इंतजामिया अरसा दराज से सीवरेज के मसले हल करने में नाकाम है। इलाका मकीनों की रोही टीम के सामने दुहाइयां। कहा कुछ अरसा पहले सीवरेज के काम के लिए सड़क को खोदा गया, मगर आज तक सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। वासा इंतजामिया को 12 मरतबा दरखास्त भी कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 दिन हो गए ये पानी का मसला हम खुद अपने ही ज़ाती पैसों से करवा रहे हैं। यहाँ कंप्लेनें भी लोगों ने की हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। और उसके अलावा यहाँ गटर लाइन तो वो डाल के चले गए हैं, वो ढकना देखें अभी भी ओपन पड़ा है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि अपनी मदद आपके तहत काम करवाने पर मजबूर हैं। वासा इंतजामिया उनकी दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं कर रही, जबकि इस इलाके में कई गटर ऐसे भी हैं जिन पर ढक्कन भी मौजूद नहीं। काफी अरसे से वैसे चल रहा है, तो ये जब रोड बनाने लगे हैं उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, ना रोड़ा डाला, इसमें कुछ भी नहीं करा, बस गटर डैन डाली है, बस डाल के चले गए हैं। इलाका मकीनों ने वासा इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की तामीर व मुरम्मत करने के साथ साथ सीवरेज लाइन का भी मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन गयास अली के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि मियांवाली में नहरें बंद होने के बावजूद भल सफाई ताहाल शुरू ना हो सकी। नहरें 13 जनवरी से 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। सफाई के अमली इकदामात न होने पर शहरियों और काश्तकारों ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि महकमा अनहार के हुकाम का मौक़िफ़ है कि फंड्स मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद रिपोर्ट कर रही हैं अख्तर मजाज।
फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मियांवाली की नहरों में बल सफाई का काम शुरू ना हो सका। शहरियों का कहना है कि वो तल केनाल के बिल्कुल साथ रिहाइश पजीर हैं, मगर कई बरसों से नहर की बाकायदा सफाई नहीं देखी, जिसके बायस कचरा, मट्टी और झाड़ियां जमा हो चुकी हैं। अगर बर वक्त बल सफाई ना की गई तो पानी न मिलने से फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। मैं यहाँ पे गुज़श्ता चंद सालों से रह रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहर बंद कर दी जाती है, और मैंने आखिरी टाइम आई गेस 5 या 4 साल पहले ही सफाई यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से सफाई वगैरह तो नहीं, अलबत्ता ये बंद कर दी जाती है और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारा गंद कचरा, और अब तो खैर काफ़ी सारी एडिशन और भी हो चुकी है। कारों का कहना था कि बल सफाई ना होने की वजह से देहात में पानी ठीक तरह से नहीं पहुँचता, फसलें मुतासिर हो रही हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नहरों की बल सफाई शुरू की जाए ताकि टेल तक पानी की रवानी बहाल हो और ज़राई नुकसान से बचा जा सके। जी बस हम हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा करेंगे कि बल सफाई के लिए कोई फंड्स जारी किए जाएं, कुछ हुकूमत का पैसा यहाँ पे भी लगाया जाए ताकि हमारे देहातों तक पानी अच्छे तरीके से पहुँच सके। दूसरी जानिब महकमा इनहार हुकाम का कहना है कि फंड्स बारे लिखा जा चुका है, जैसे ही फंड मिलते हैं बल सफाई का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। बहावलपुर की ताजिर बरादरी का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती। ताजिरों का शहर की तमाम मार्केटों में आग बुझाने वाले आलात रखने का ऐलान। ताजिरों ने बहावलपुर के बाजारों और प्लाजों को भी गैर महफूज करार दे दिया। साथ ही उन्होंने मुतल्लिका इदारों से फौरी तौर पर ऑडिट करवाने का भी मुतालबा कर दिया। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की ताजिर बरादरी का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती। सदर मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान बहावलपुर का कहना है कि सानिया पूरे शहर के लिए सबक है और अब वक्त है कि सेफ्टी को तरजीह दी जाए। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के बाद झूलती तारों के मसाइल संगीन हो चुके हैं, जो आग लगने की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। तमाम मार्केटें और प्लाजे हंगामी तौर पर महफूज बनाए जाएं। पूरी ताजिर बरादरी पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की, बहावलपुर की खुसूसन, हम उनकी जिस तकलीफ़ के अंदर बराबर के शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। मेन रोड की जो आपकी तारें हैं वो बिल्कुल मेन के ऊपर आई हुई हैं। आप सर्कुलर रोड पे जाके देखें, आप शाही बाज़ार में जाके देखें, आप गिरीगंज बाज़ार में जाके देखें, आप अहमदपुरी बाज़ार में जाके देखेंगे, आपको हर जगह पे नंगी तारें नजर आएंगी। ताजिर बरादरी ने एतराफ़ किया है कि इनके पास आग बुझाने के आलात नहीं हैं, ताहम शहर की तमाम मार्केटों में आग बुझाने के आलात रखने का ऐलान करते हैं। ताजरों ने बहावलपुर के बाजारों और प्लाजों को गैर महफूज करार देकर मुतल्लिका इदारों से फौरी ऑडिट का मुतालबा किया और कहा कि बाजारों में ताजरों के साथ मॉक एक्सरसाइजेस करवाई जाएं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। यही बुनियादी तौर पर आज तक जितने भी आतिशज़दगी के वाक़यात मार्केट्स में हुए हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए हैं और अमूमन वो मेन की जो तार्स हैं उनमें स्पार्किंग की वजह से हुए हैं। और कल भी ये जो वाक़या हुआ है इसमें करोड़ों का नहीं, मैंने खुद ज़ाती तौर पर गुल प्लाजा को विजिट किया हुआ, वो अरबों का सामान वहाँ पर होगा और यकीनन कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, अरबों रुपए का माल ज़ाया हो गया। बहावलपुर के ताजरों की इस आवाज पर मुतल्लिका इदारों को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि शहर में मार्केटों की सेफ्टी अब एक संजीदा मसला बन चुकी है। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर।